સમર્પયામિ. હવે કળશનું જે પાણી છે એ વાટકામાં પધરાવો, વાટકાનું પાણી કળશમાં પધરાવો. અરસ કરી ઉદકાશ સંકલિતવા મંગરુણાય નમઃ પૂજા દ્રવ્યાણી સંપ્રોક્ષયેતઃ. પછી વાડકામાંથી તમારા ડાબા હાથમાં પાણી લઈ નથી બધાને પવિત્ર કરો. હા પવિત્રમ પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાંકડો વિદા યસ્પરેત પવિત્ર એકાક્ષર સુભાયા યન્મરાસુની સર્વસ્થળ પવિત્રકરણમસ્તુ. બધું પાણી ચડાવજો. સર્વસ્થળ પવિત્રકરણમસ્તુ પુંડરીકાક્ષાય નમો નમઃ. યોગાચરમ સમર્પયામિ હસ્તયોજમ સમર્પયામિ હરિજ્ઞાચે આત્મનિમ સમર્પયામિ. બાલકૃષ્ણ પરમાત્મને નમઃ. પાદ્યોસ્તર્યંતે લાલપુત્રં પ્રવર પાદ્યોસ્તર્યંતે આત્મનિજલમ સમર્પયામિ. હવે દાદા ગુરુ પંચામૃત છે એક કમલે બધાને પંચામૃત આપજો. માધોશ્ચય शर्करा पर्यंत मिलित द्रव्य उपचारे पंचाभूत प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी બધા યારે બોલવાનું છે. गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया चरमणवती क्षेत्रावे पुण्यां सदा मंगलम नादं सदा मंगलम. बस शुद्ध वस्त्रे ब्रह्मे પાછા ભાવથી આગ્રહથી બોલું ને
અહીંથી પછી કોઈ વસ્તુ બાકી રહે નહીં. સમસ્ત પિતૃ દેવ્યાભ્યો નમઃ. સમસ્ત પિતૃ દેવતાભ્યો નમઃ. સમસ્ત એટલે બધા આવી જાય, પછી કોઈના નામ લેવા પડે નહીં. બરાબર? સમસ્ત પિતૃના દેવતાભ્યો બોલવા. પિતા પિતામસ્તેગા તદેવ પ્રપિતામહ માતા મદવેદાન્ય પ્રમાતા મહાકાલય એતે ભવન્તુ મે પ્રયશ્ચાન્તો ચ મંગલં વાગરધા વિવ સંપ્રક્તો વાગરધા પ્રતિપત્તયે જગતઃ પિતરો વંદે પાર્વતે પરમેશ્વરો. સમસ્ત પિતૃના દેવતા આવાહિષ્યે આવાહ્ય. હવે બધાય જેમ બોલું એમ બોલવાનું છે. જેને ભાઈ બ્રાહ્મણોએ પોતાનું ગોત્ર બોલવાનું છે. આ બધા કાશ્યપ બોલ છે. કાશ્યપ બોલો. કાશ્યપ ગોત્રાન્ન પિતૃ પિતામહ પ્રપિતામહ કાશ્યપ ગોત્રાન્ન માતામહ પ્રમાતામહ વૃદ્ધ પ્રમાતામહ સપત્નિકાન સમસ્ત પિતૃન અસ્ય શ્રીફલ મધ્યે આવાહિષ્યે આવાહ્ય. બધાએ સમસ્ત પિતૃ દેવતાને પ્રાર્થના કરવાની છે. પિતૃના દેવતાઓ જે કોઈની પણ અસદગતિ થઈ હોય, જેની કોઈ પાસે પિંડદાન થયું હોય, જેની કોઈ પાસે દાડાનું કાર્ય ન થયું હોય, જે અમારે જાણતા હોય અજાણતા હોય, એ દરેક પિતૃના દેવતાઓ પ્રેતાત્માઓ બધા જ આશ્રમમાં પધારો. 7 દિવસ સુધી અહીંયા જેને પરીક્ષિતને મૂક્યા કોઈ ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું છે. એ ભાગવત કથા તમે સાંભળી તમારા આત્માને શાંતિ તૃપ્તિ આપો. તમારો અક્ષયલોકમાં, ગૌલોકમાં, વૈકુંઠલોકમાં, સર્વલોકમાં વાસ થાય. આવી પ્રાર્થનાથી ભગવતી ગંગાના તીર્થે અમે આ આયોજન કર્યું છે. આ સત્કર્મ લઈને બેઠા છીએ. બધા જ પિતૃનું મનથી સ્મરણ કરો. 2 મિનિટ થાવ શાંતિ, એકદમ મૌન થઈ અને પિતૃના દેવતાને બધાને બોલાવો. બરાબર? એકદમ શાંતિ. બોલે શ્રી પિતૃનારાયણ દેવની જય. બદલ શ્રીફળને હવે આપણે આરતી ઉતારવાની છે. આરતી એક છે એટલે બધાએ વારા ફરતી એક અડધી કડી બોલે એટલે બીજાને આપી દે. બીજાને બધા ઉભા થઈ જાવ. Hare
शेष्यानो जस्य पादस्य सेकंदे त्रिपादूर्ध्वौदे पूर्वकः पादस्य हवेला तस्य नष्टारक्षो वर्ष्णने सुस्तिनो प्रास्पतिकृतातु भद्रङ्गारणे देशनयामनिवा ब्रह्मशीमाक्षावजगराः स्ये अंगस्ति पंचजन अधिकृजातम् शांति शांति सुशांतिर्भवतु अस्तिर्गन्धाक्षमादाय आमन्त्रे कमले पुण्यवेदन सुखविदातु मलिजो करवाऊं तैयारी माना आदला बजा निकला त्रणवार भगवान विष्णु मंत्री स्मरण करवा ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णोर्विष्णोर्विष्णोरः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोरग्न्यः प्रोतमानस्य अद्यसे ब्रह्मनित्रादस्य श्रीवारगलवे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कलियुक्तं चरणे भोरलोके भारतवर्षे प्रगन्धे जम्बूद्वीपे नैमिषारण्यार्या वर्तान्त ब्रह्मावर्तकदेशे कन्याकुमारिका नाम निक्षिते आलः ऋषिकेश सानिध्ये भगवती भागीरथी तटे अध्यात्मदिने श्रीमद् भागवत वाङ्मय स्वरूप पूजनार्चन शक्ति भक्ति अनुसार गणेशे जन्मज्ञाको पगलागी जात नमस्कार नमस्कारोमि श्रीमद् भागवत वाङ्मय स्वरूपाय नमः जय बोलो अंश बोलो अनेना सफला हरिगेण फलदः अस्तु सदा मम की जय नरसिंहभाई भावे को नरसिंहभाई से क्या या थोड़ा कॉफी बोल तो रे हां जावे अरे बापा
हाँ यहाँ मामा બધું હાલવું જોઈએ મોટો ફરતો ફરતો मंत्रार्था सफला संतो संपूर्ण मनोरथा कोटिया सो मेरा कृष्ण कन्हैया
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगल के को पकड़ाई एमना आशीर्वाद सहित श्री हरे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भाग्यशाक्याशु मनसः शर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वात् कृतकृत्याशु स्तं नमामि गजाननम्। वसुदेवसुतं देव कंस की प्यारी प्यारी तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी तेरी सूरत लगे प्यारी प्यारी राधा रसिक बिहारी 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 राधा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तत्संगमे चलते पुरुषो यदा वै। जब अनेक जन्मों का पुण्य पुंज होता है, एकत्रित होता है, तो हमें
श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। और जब तक भगवान की कृपा न हो, आपको एक बात बताऊं, तीन की जीवन में कृपा होती है। एक शास्त्र की कृपा और गुरु कृपा और स्वयं की कृपा। जब ये तीन की कृपा होती है तो फिर हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुलभ हो जाती, प्राप्त हो जाती। तो कहने का आशय, कथा भगवती हर जगह सुना जाता है, लेकिन कहा गया महात्मा में कथा आती है कि जब श्री नारद जी जैसे महापुरुष को भी शांति नहीं मिली भक्ति ज्ञान वैराग्य को उठाते उठाते, तो अंत में आकाशवाणी ने कहा कि नारद तुम निराश क्यों होते हो, तुम निराश मत हो, तुम्हें कोई संत महापुरुष मिलेगा और जिससे तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वह अपने आप ज्ञान कुंज प्रकाशित हो जाएगा। तो नारद जी बद्रिकाश्रम में गए तब के लिए कि भक्ति के अंदर जो दुख है, उसके पुत्र जो ज्ञान वैराग्य है उन्हें आनंद मिले। बद्रिकाश्रम में गए तो उन्हें सनकादिक मिले, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने कहा महाराज मैंने देखा है कि हरि का दास कभी उदास नहीं होता, और आप हरि के दास होकर के आज उदासीनता आपके चेहरे पर है, यह मुझे विश्वास नहीं होता। तो नारद जी ने अपनी कथा, अपनी व्यथा को एक संत के सामने निवेदन किया, कहा। तो संतादिकों ने जब नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा कि भाई मैंने कहा जाता है कि वेद वेदांत पाठिश्च वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। हमने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, अनेक तंत्र मंत्र यंत्र जितने थे सबका मैंने पाठ कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को आनंद नहीं मिला। तो आप जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं, इस भागवत में है क्या? तो सनकादिकों ने कहा कि भागवत तो कहा गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फल। तो यह श्रीमद् भागवत कथा है जिसके अंदर ऐसा फल है, और इस फल में गुठली छिलका तो है ही नहीं, केवल रस है। इसीलिए कहा गया कि पिबत भागवतम। बोले ऐसे रस को पीते रहो। बोले कब तक पिए? बोले तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रस मां। रस की जो खान है मां माने राधा या सीता, जब तक इनके आलय तक, घर तक न पहुंच जाओ, जब तक इनके साथ तुम्हारा संबंध न हो जाए, तब तक इस रस का पान करते रहो, पीते रहो। तो नारद जी को जब उन्होंने थोड़ा सा ज्ञान दिया, बोले ठीक है महाराज कथा तो सुनेंगे, लेकिन आप वृंदावन चलिए। तो सनकादिकों का कितना बढ़िया उत्तर था कि महाराज हम वृंदावन जा नहीं सकते। वैसे वृंदावन भक्ति का स्थान है जहाँ राधा रानी विराजमान होती है, भक्ति सदा नृत्य करती है, लेकिन हम उत्तराखंड छोड़ करके कभी हम कहीं जाते ही नहीं। बोले तब अगर आप जाएंगे नहीं तो कथा होगी नहीं, और जब कथा नहीं होगी तो फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य को आनंद कहां से मिलेगा? बोले महाराज ये तो मेरे सामने आपत्ति है कि हम जा नहीं पाएंगे। बोले नहीं जाएंगे? बोले नहीं। तो नारद जी ने कहा ऐसा करते हैं कि थोड़ा आप ऊपर की ऊंचाई को छोड़ करके नीचे आ जाओ, और हम भी भक्ति से प्रार्थना करेंगे, तुम भी वृंदावन की ऊंचाई को छोड़ करके ऊपर चलो, और जहां बीच की दूरी होगी वहीं पर कथा हो जाएगी और सुन लिया जाएगा। तो सनकादिकों ने कहा कि एक बात तो कुछ जच गई। बोले तब कहां? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में जहां हरि का द्वार है, वृंदावन से और बद्रिकाश्रम की बीचों बीच की दूरी है, और दोनों जब वहां से भक्ति चलेगी और मैं वहां से बद्रिकाश्रम के अवस्था को छोड़ करके उस तपोभूमि को छोड़ करके बीच में आएंगे, और वहां जो गंगा के तट पर, गंगा का कहते हैं भागीरथी गंगा का जहां तट होगा
और जहाँ स्वयं गंगा प्रवाहित होगी और वहां पर कथा रूपी गंगा का प्रवाह जहाँ चलेगा सप्त दिवसीय, तो वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य के अंदर अपने आप आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो सर्वप्रथम आपको बताएं, वैसे भागवत की परंपरा नारायण से चली है। नारायण ने उठा करके ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने नारद को दिया और नारद ने उठा करके व्यास जी को दिया और व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को दिया और सुखदेव से सुखदेवी परंपरा जो है, सुखदेव जी महाराज भी गंगा के तट पर ही परीक्षित को कथा सुनाए थे। तो कहने का आशय यह वही भूमि है जिस भूमि पर सनकादिकों ने 7 दिन तक जो नारद जी महाराज कहीं टिकने वाले नहीं थे, रुकने वाले नहीं थे, उनको 7 दिन तक गंगा के तट पर बांध करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। जिस कथा सुनने के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य को आनंद मिला और वहां नारद जी ने भक्ति ने पूछा कि महाराज मैं रहूं कहां? तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिसका मन निर्मल हो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम हो, उसके हृदय में जाकर के तुम निवास करो। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने प्रवेश कराया, यह वही भूमि है। तो कहने का अर्थ है अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ के क्षेत्र में जो भी पाप अगर अन्य जगह किया गया होता है वह तीर्थ क्षेत्र में विनाश होता है। तो 7 दिन तक आपको सुंदर सुअवसर मिला है कि गंगा का तट, गंगा के किनारे, और वो भी श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ संतों की भूमि ऋषिकेश में ऋषियों की तपस्थली के अंदर, ये तो बड़े बड़े देवताओं को भी सुलभ नहीं होता है। आपको व्यास जी सुनाएंगे, महात्म्य में ही आता है। तो कहने का आशय ये तो बड़े भाग्य होता है, तभी मिलता है। आपको 7 दिन तक व्यास जी महाराज सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम दूंगा। दोबारा भगवान का नाम लें। तत्पश्चात कथा बड़े भाव और श्रद्धा के सहित, व्रत के सहित, नियम के सहित श्रवण करें, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। तुझे बाबूनो खूब खूब आभार। एक संतना मुखे एक संतने वाणी द्वारा જ્યારે આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થયો હે, અને આ એક ભગીરથ આયોજન જેની છત્રછાયા નીચે છેક સુરતથી આટલો મોટો સંઘ અહીંયા આવ્યો હોય, હે, માત્ર ભજન કીર્તન કરવા, અને એ રીતે જેનો નરસિંહ મહેતા જેવો ભાવ ખાતો હોય અને છતાંય બધું જ કાર્ય નિર્વિઘ્ને ક્યાંય પણ વિઘ્ન ચાલતું હોય તો એવા પૂજ્ય વિજય બાપુને વિનંતી કરું કે અહીંયા આવે અને આશીર્વચન આપે. વિજય બાપા. जब हम आप भगवान के सन्निकट प्रभु के पास जाने के लिए रत हो जाते हैं, भगवान के समीप, तो कोई न कोई गुरु का माध्यम हो जाता है। और बिना गुरु के आपके जीवन में, चाहे हमारे जीवन में या कोई भी व्यक्ति हो, बिना गुरु के उसके जीवन में प्रकाश नहीं करता। भागवत के अंदर जो श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की उपासना वाले थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। यहाँ तक कि कहा गया कि व्यास जी ने शिव जी से प्रार्थना किया
कि प्रभु जो आपको आनंद समाधि में मिलता है, समाधि के अंदर जो आनंद की प्राप्ति होती है, अगर आप पृथ्वी पर आकर के वह आनंद हम जीवों को आप प्रदान नहीं करेंगे तो आपको लोग क्या कहेंगे, आप स्वार्थी हैं जगत में। तो वही शिव जीव की कल्याण के लिए सुख के रूप में आए और मां अरण्य गर्भ में विराजमान हुए। वहां से जब बाहर आए, व्यास जी ने प्रार्थना किया तो घर छोड़कर के संन्यास के लिए चले जाते हैं। बार बार श्री व्यास जी की इच्छा होती है कि श्री सुखदेव जी महाराज आए, सुखदेव जी महाराज आए, लेकिन आने का नाम ही नहीं लेते। तो व्यास जी ने एक सुंदर श्लोक लिखा, खूब बढ़िया श्लोक लिख करके और अपने शिष्यों को पढ़ाया और पढ़ा करके कहा कि इन श्लोक को ले जाओ जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हों, जहां निर्गुण उपासना वाले सुखदेव जी रत हों, उनके सामने जाकर के श्लोक का पाठ करना। उनके शिष्य गए और जाकर के जब सुनाए कि बंसी विभूषित कराण्योनीर रावा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा। जब जाकर के सुने तो सुखदेव जी ने कहा क्या सुंदर छवि है, मैं तो न जाने किस रूप का ध्यान कर रहा हूँ जो आज तक कभी मेरे हृदय में आया ही नहीं। निर्गुण का मतलब होता है जिसका बिना कोई आकार प्रकार का, जिसका आकार प्रकार न हो, जिसका कहते हैं कि तन बिनु नयन परस बिन देखा, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो जिसकी वाणी नहीं है फिर भी बोलता है, जिसकी जिह्वा नहीं है फिर भी रस को ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना वालों ने जब देखा कि सुंदर स्वरूप, तो कहने लगे कि इतना सुंदर स्वरूप तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं था। ऐसा लगता है कि हे मोहन, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो गया कि मोहन तेरी मुरली की कसम मैं तुझ पे निछावर कर बैठी। अभी तक तो ऐसा था कि मैं तुझे देखता था, लेकिन अब तक तेरे निर्गुण को भुला करके तेरे सगुणत्व में आ गया, तेरे सुंदर रूप में आ गया, तुझे देखने की बार बार चाहत होती। तो फिर सोचने लगे कि भाई मैंने सुना है कि सुंदर तो है, गोपियां भी कहती हैं कि लाला तो सुंदर है या सुंदर नहीं है। और सुंदर सुंदर से करवा गुणई विहीनो गुणनाम बरवा वैसी मई साथ करुणाम निर्वा श ये वाक्य गधिर ममायन। चाहे कृष्ण सुंदर हो या न सुंदर हो, चाहे उनके अंदर कोई गुण हो या न हो, लेकिन हमारी गति तो एक कृष्ण की है। श्याममती श्याम ही सो प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो बाधा है। तो हमारी जितनी गति विगति है सब कृष्ण के चरणों में समर्पित है। फिर सोचने लगे वह है तो, लेकिन मैंने सुना है कि उसके जैसा निर्मोही कोई है ही नहीं। जिसने उसको चाहा उसको बीच भवसागर में छोड़ करके चला गया, और जो उसको बचता है उसके सामने उसके पास रोने के सिवा तो कुछ उसे मिलता ही नहीं, उसे जीवन भर रोना ही पड़ता है। तो ऐसे काम भजन कीर्तन फिर निर्गुण उपासना में लग गए। फिर उन्होंने एक श्लोक लिख करके भेजा और व्यास के शिष्यों ने जब सुनाया, अहो वकीयम स्तनकालकोटम जिंघाशया पाय विलक्ष्य सात्वे लेहि गति धातु चिताम तदुन्यम कंबा दयालु शरणम रजेमा। ऐसा कौन दयालु होगा जो पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आए थे, तो उसको भी हरि ने मातृ गति प्रदान किया, गति दिया। तो उसकी जैसा दयालु कौन होगा। सुनी दयालुता की महिमा को सुन करके दौड़े और आकर के व्यास जी के चरणों में सुखदेव जी महाराज गिर गए, उठा करके हृदय से लगा लिए, बोले मुझे आप भागवत की कथा सुनाओ, भागवत की कथा सुनाओ। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। व्यास जी ने कहा कि तेरे लिए ही तो भागवत मैंने सजो करके रखा था,
यह भागवत की कथा तेरे लिए मैंने बचा करके रखा था, भला तेरे सिवा मैं किसको सुना सकता हूँ, तो इस कथा को सुन। और कथा जब इन्होंने सुना, आपको बताऊं कि इन्हें राधा नाम से इतना प्रेम था कि एक बार राधिका का नाम जिह्वा पर आ जाता तो 6 महीने की समाधि लग जाती श्री सुखदेव जी महाराज को। भागवत के अंदर कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से राधा नाम लिए ही नहीं। बोले अगर राधा जी का नाम आ जाएगा तो मेरा परीक्षित योनि बैठा रह जाएगा, उसे कौन मुक्ति दिलाएगा, उसका उद्धार कौन करेगा। तो मुझे तो इस परीक्षित को मुक्ति दिलाना है, इसलिए राधिका को हृदय से स्मरण करके और राधा की निकुंज का रहने वाला एक सुख था। कभी कभी इसके मुख से श्री राधे जब निकलता तो राधा जी को बड़ा आनंद आता और वह अपने प्राणेश्वरी राधिका उस सुख को उठा करके हाथ में लेकर के कहते हैं कि सुख तो राधे मांबर कृष्णम बर कृष्ण कृष्ण तो बोल, कृष्ण कहेगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। तो कहने का आशय जीवन में जिसने राधा और कृष्ण को अपना लिया है, अपने हृदय का हार बना लिया है, हृदय में बैठा लिया है, तो फिर भागवत की कृपा, भागवत का अनुष्ठान, भागवत का नियम सब कुछ सफल हो जाता। तो जीवन में किसी भी राम हो या कृष्ण हो, दोनों एक ही हैं। कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि राम है, इनके अंदर 12 कला है, कृष्ण है 16 कला है, दोनों एक हैं। कहते हैं ना कि दोनों के अंदर कभी भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। रूप रंग सब एक है, चाल चलन तिल एक, इनके दृढ़ गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। थोड़ा सा अंतर है कि एक चपलता लेकर के है जिसके अंदर चंचलाहट है, और एक गंभीर है, एक गंभीर से स्थित है और एक के अंदर चंचलाहट है। आपको एक बात बताऊं, दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों के जीवन में भगवान कृष्ण जब 6 दिन के थे तो पूतना का वध करते हैं, और भगवान श्री राम उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, भगवान श्री राम 16 वर्ष से थोड़े कम थे, 15.5 के होंगे। तो उन्होंने सर्वप्रथम ताड़का का वध किया था। एक पूतना का वध करते हैं, एक ताड़का का वध करते हैं। पूतना में भी 3 अक्षर और ताड़का में भी 3 अक्षर, दोनों विद्या है। हमारे कहने का आशय था कि दोनों जो हैं एक ही तत्व हैं। कहते हैं ना, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों में कभी भिन्नता कभी आने ही नहीं चाहिए। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। लीला के क्षेत्र में एक लीला करता है और एक अपने चरित्र को दर्शाता है। चरित्र चरित्रम योग्यम यस्य स चरित्र, जिसका चरित्र अपने आचरण करने योग्य है और जिसकी लीला मात्र देखने योग्य है। देखने से ही कहते हैं लीयन्ते वासना यस्मिन यस्य सा लीला, जिसमें हमारी समस्त वासनाएं लीन हो जाएं उसे लीला कहते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। नंदलाल दशरथ कुमार उभय बीच सरकार, नारायण जो दो कहे ते नर बिना विचार, तुलसी ते नर बिना विचार। कहते हैं दोनों एक ही हैं, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। भागवत रामायण दोनों भक्ति परक ग्रंथ हैं, जिसको अपने हृदय में बैठा करके
और श्रद्धा भाव से अगर सुनते हैं तो मन की समस्त ग्रंथियां अपने आप खुल जाती हैं और हृदय में राधे कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। तो कन्या काल से ही शब्दों के साथ गाने को विश्राम दूंगा। व्यास जी महाराज कथा આપણે રજૂઆત શાસ્ત્રી સંતો ભક્તો સર્વને ભાગવત કથા શ્રવણ કરવા નિર્વિઘ્નમ પૂર્વદેવ સર્વકાર્ય સર્વદા એવા બ્રાહ્મણ અમારા આશીર્વાદ છે। બીજું કંઈ કહેવા માંગુ છું, ભાગવત ઉપર વર્ણન કરી શકે નહીં। જેટલું પણ આ કળિયુગની અંદર ભાગવત શ્રવણ કરવાથી ફળ મળે છે એનાથી વિશેષ કોઈ ફળ મળતું નથી। એમાં પણ ભાગવત કથા શ્રવણ કરવાનું જે પણ અનેક પુણ્યોના જન્મથી ભાગ્ય થાય તો જ મળશે। એમાં પણ હરદ્વાર ગંગા ઋષિકેશની અંદર ગંગા કિનારે ભાગવત કથા ભગીરથી ગંગા અને એમાં પણ ભાગવત કથા જેટલો પણ સમય મળે એટલો શ્રવણ કરજો, દરેક સહકાર આપજો, થાય એટલું तीर्थयात्राમાં પુણ્યદાન કરજો અને કોઈનો પણ દેશ નહીં કરતા, કોઈને અપરાધ નહીં કરતા અને સૌને સંપીને સાથથી સત્કાર આપજો। જય ગણેશ। ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે આપણી કથાના વ્યાસાસન પર વિરાજમાન पूज्य वजुदादा ने विनंती कि आज थी 7 दिवस सुधी भागवत भागीरथी गंगा ने एवी वहाव कि भक्तजनों एनी साथे एनी तमाम 71 पेढ़ीना मित्रों जे आ उपस्थित छे विराजमान छे तमाम नो मोक्ष थाय ए माटे पूज्य वजुदादा एमने विनंती के एमनी वाणी में भागवत कथा शुभारंभ करे। नमो
જેમાં આજે આપણે 7 દિવસની કથાના મુલાસરમાં અત્રે આપણે ભાવિક ભક્તજનો ઉપસ્થિત સર્વ માતાઓ બહેનો ભાઈઓને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.